Good afternoon, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. This is your fourth lecture of object-oriented programming using C++. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 1, that is principle of object-oriented programming. Okay. So this is the fourth lecture of this unit. Now, in previous lecture, what we learn? We learn about the different expression. Okay, different tokens. Then we learn about C versus C++, then structure of C++, and how to write a simple C++ program. Okay. Then we learn the different key concept like the tokens, keyword, constant, variable, identifier. Okay. Now, in this lecture, what we are going to learn? We are going to learn about the control structure, then important operator in C++, and what is array, string, and structure in C++. Okay. Now, first we will start with what is control structure. Now, in our C++, there are mainly three types of control structure are available. Okay. Now, which are the three types of control structure? They are the sequence structure, selection structure, and loop structure. Now, what is the use of this control structure? And that is used to control our statement. Now, here we will start with first, that is sequence structure. Now, what is sequence structure? That is the straight line. Sequence structure means straight line. The normal program are executed in the form of sequence. जो भी नॉर्मल प्रोग्राम रहता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? इन अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर. ओके. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर फर्स्ट देयर इज द एंट्री, then action 1 execute, then action 2, action 3 and exit. ओके. सो ये क्या है? हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है और वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर? सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैज़ following type which normally used in the programming. They are the two types. Now when this selection structure is used, it is used in a branching. जब branching होता है ना, ओके, तो मतलब जब दो ब्रांच होते हैं then it is used the selection structure. Now there are the two types, if statement and the switch statement. Now which are the selection structure? That is two types, that is if and switch case. Okay. Now here you can see this is the diagram of our selection structure. Here you can see first there is the entry, and after that one condition is there, and here the branching is available. Here the two ways, that is true and false. Depending on that decision or result, the next action will be execute. Okay. So it is called as a selection structure. Here the branching is involved. Okay. Now we will start with our first type of selection structure, that is our if statement. Now what is the meaning of if statement and when it is used? Now there are the two form of if statement. The first one simple if and second one is if else. Now what is a simple if? If there is only one condition is available, then we can use the simple if. So here it only for check the condition, and depending upon this condition, if the condition is true, then it execute the statement. For example, here first you have to write down if, then expression is true. So you have to execute action 1. जब भी आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू होगा तभी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. वो क्या है? आपका इफ स्टेटमेंट. ओके. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट? इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा? एक तो पहले आप कंडीशन चेक करेंगे इफ में. इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आप action 1 एग्जीक्यूट करेंगे. ओके. अदरवाइज एल्स, नीचे देखो आपको एल्स दिख रहा है, नहीं तो आप लोग दूसरा एक्शन एग्जीक्यूट करना है. ओके. इफ में क्या था? ओनली कंडीशन चेक करेंगे, जो ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. इसमें क्या होगा? दो स्टेटमेंट है. एक वेदर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर वो ट्रू होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके. सो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट. देयर इज ऑल्सो द सिलेक्शन स्ट्रक्चर. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट.
Now it is the multiple branching statement where based on the condition the control is transformed to one of the many possible point. देखो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट जो है उसमें क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल है. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और रिजल्ट द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट और एक्शन इज एग्जीक्यूट. फॉर एग्जांपल आपको देखो यहाँ पे स्विच, फिर वहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, वहाँ पे आपका कंडीशन आएगा. जो कंडीशन ट्रू है उसके हिसाब से फिर आप लोगों को एक्शन परफॉर्म होगा. ओके, सो when this switch statement is execute, when there is a multiple branching, then we can use this switch statement. Okay, then हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज लूप स्ट्रक्चर. हम लोग ने देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर में फर्स्ट तो हमारा सीक्वेंस, देन सेकंड है सिलेक्शन एंड थर्ड आता है लूप ना. The loop structure is frequently used in array and the repetitive task. लूप स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ मोस्टली यूज इन एरे, और जहाँ पे टास्क रिपीट हो रहा है वहाँ पे ये लूप स्टेटमेंट लूप स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट होता है. ओके, नाउ देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल. द फर्स्ट वन इज डू वाइल लूप एंड फोर लूप. विच आर द 3 टाइप्स ऑफ लूप? डू वाइल and for loop. Okay, now here you can see our loop statement. The first one is do while loop. Okay, now here the do while loop is a exit control loop. do while loop कौन सा loop है? exit control loop. Based on the condition the control is transferred back to the particular point in the program. The syntax is as follow. देखो यहाँ पे जो हमारा do while loop है वो क्या है? वो एग्जिट कंट्रोल लूप है. वो तो क्या करेगा, फर्स्ट वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा. देखो यहाँ पे फर्स्ट है डू एक्शन 1, देन वाइल कंडीशन इज ट्रू. ओके, तो इसमें क्या होगा कि पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो है हमारा एक्शन 1, फिर कंडीशन चेक करेगा. जो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से वो एक्शन 1 एग्जीक्यूट करेगा. ओके, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो जो नीचे का एक्शन है एक्शन 2 वो एग्जीक्यूट करेगा. सो जो ये जो हमारा डू वाइल लूप है दैट एग्जीक्यूट वंस, एक बार तो क्या एग्जीक्यूट होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि पहले वो एक्शन परफॉर्म करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वाइल स्टेटमेंट लूप. नाउ एंड दिस इज ऑल्सो अ लूप स्ट्रक्चर बट इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप. वो क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप. देखो यहाँ पर हम लोग ने देखा जो हमारा डू वाइल लूप है वो क्या है? एग्जिट कंट्रोल. एग्जिट कंट्रोल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि वो एग्जिट में कंडीशन चेक करता है. ओके, देखा आप लोग ने यहाँ पे जो है एक्शन परफॉर्म होने के बाद लास्ट में वाइल आता है, वाइल लास्ट में वो कंडीशन चेक करता है. बट जो ये वाइल स्टेटमेंट लूप है वो क्या है? एंट्री कंट्रोल. मतलब वो स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करेगा. देखो यहाँ पे वाइल कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तब भी एक्शन परफॉर्म होगा. ओके, सो ये जो हमारा डू वाइल लूप था तो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है क्योंकि वो लास्ट में आया कंट्रोल, क्योंकि वो लास्ट में कंडीशन चेक करता है. ओके, बट ये जो वाइल स्टेटमेंट लूप है वो है एंट्री कंट्रोल लूप बिकॉज इट फर्स्ट चेक द कंडीशन देन इट विल परफॉर्म द एक्शन. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फोर लूप. व्हाट इज फोर लूप? द फोर इज एन एंट्री कंट्रोल लूप and it is based when a action is to be repeat for a predetermined number of time. The syntax is as shown below. देखो ये जो हमारा फोर लूप है दैट इज ऑल्सो एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप का मीनिंग क्या है कि वो स्टार्टिंग में ही आपका कंडीशन चेक करेगा. ओके, सो हियर इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द रिपीटेड फॉर द प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ टाइम. देखो यहाँ पे आप लोग को फोर लूप का सिंटेक्स दिख रहा है, उसमें देखो फर्स्ट है इनिशियल वैल्यू. ओके, देन दूसरा क्या है? कंडीशन. इनिशियल वैल्यू मतलब कोई भी एक वेरिएबल लेंगे उसका पहले इनिशियल वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे, वो वहाँ पे सेटिंग होगा. देन कंडीशन में कि लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है उसकी कंडीशन होगी. देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जो भी वेरिएबल हम लोग ने यूज़ किया है उसको इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है वो वहाँ पे शो करेगा. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्शन condition
द एक्शन 1 एंड एक्शन 2 विल बी एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने एक लिया है 4 i इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 वो क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू हो गया। देन कंडीशन हुई i लेस देन और इक्वल टू 10। उसका मीनिंग क्या है कि i जब तक 10 और 10 से कम है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और i प्लस प्लस। सो एवरी टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगी उसके बाद i की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिया है। सो ये था हमारा फोर लूप, दैट इज ऑल्सो द एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट ऑपरेटर इन C++। ना ओके, यहाँ पे देखो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेटर ऑफ C++, दैट इज देर आर टू मेनली ऑपरेटर दैट आर द important operator of our C++, that is scope resolution operator and memory management operator. These are the most important and most frequently used operator in C++. Okay, now we will discuss about these two operator one by one. Now first we will start with scope resolution operator. Okay, now what do you mean by scope? Now here the scope of the variable extends from the point of its declaration until the end of the block containing the declaration. For example, मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, ओके, जो उसका स्कोप कहाँ तक है जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है, और लास्ट पॉइंट उसका क्या रहेगा कि वो ब्लॉक का जो एंड, जहाँ पे वो ब्लॉक एंड होता है जिसमें वो डिक्लेयर हुआ है वहाँ तक उसका स्कोप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो यहाँ पे द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक इज सेड टू बी द लोकल टू दैट ब्लॉक। यहाँ पे आप लोग को एक ब्लॉक दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट जो है दैट इज़ वन ब्लॉक, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर है इंटीजर x इज इक्वल टू 10। तो ये जो x इज इक्वल टू 10 है वो उस ब्रैकेट के लिए क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। ओके, क्योंकि वो उस ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है, तो उसका स्कोप कहाँ से हुआ, जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है, और जो एंडिंग पॉइंट है जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट है एंड कर्ली ब्रैकेट वहाँ तक उसका स्कोप है। सिमिलरली एक दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर हुआ है x इंटीजर x इज इक्वल टू 10। तो x की जो वैल्यू है आप लोग को दिख रही है 2 है, वो दो अलग अलग ब्लॉक में डिक्लेयर हुई है। सो दे कैन बी एक्ट एज अ डिफरेंट। ओके, और वो क्या हुआ है, वो दो ब्लॉक के लिए वो एज अ लोकल वेरिएबल काउंट होते हैं। ओके, सिमिलरली देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है द टू डिक्लेरेशन ऑफ द x रिफर टू द टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन containing different value and the block both block cannot be referred to the value of x। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो x जो वैल्यू है वो अलग अलग ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है, तो उसके लिए दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है। ओके, अलग अलग जगह पे एलोकेट हुआ है तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगी दोनों के लिए, और वो उसकी दोनों की वैल्यू भी अलग अलग ही होगी। ओके, देखो यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है, और उसी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक 1 के अंदर दूसरा एक ब्लॉक लिया है दैट इज़ ब्लॉक